Hello my dear students, welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures, I discussed detail about cell divisions, especially for meiosis second as well as significance of meiosis. But today, now we are going to discuss the new chapter, the respiration in plants. Respiration is the very important physiological process found in all the living things, either plants or animals, दोनों में यह पाया जाता है. But the here discuss about detail on cellular respiration. किस पर हम बात करेंगे? Cellular respiration. Cellular respiration. Respiration can be categorized into three types in case of animals. अगर एनिमल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर एनिमल्स की हम बात करते हैं तो इन एनिमल्स हैविंग respiration they are divided into three parts. The first is known as external respiration, external respiration, external respiration that is known as breathing. The external respirations or breathing takes place in both animals as well as plants and plants both. अगर एनिमल प्लांट्स दोनों की हम बात करें तो both the living organism contains external respiration or breathing. Exchange of gases takes place from environment to inside the cell. From environment that is known as breathing or external respiration. Second is known as internal respiration. Internal respiration. Internal respiration mostly found in animal cell. तो यहाँ पर क्या होगा? The exchange of gases between lungs and blood. And third is known as cellular respiration. Cellular respiration क्या होता है? Respiration takes place inside the cell. यहाँ पर जो respiration होगा, respiration takes place inside the cell with the help of water molecule, with O2. So this type of respiration is known as cellular respiration. So today we are going to discuss cellular respiration, because the cellular respiration is the common respiration found in plant as well as animals. So they are found in plants as well as animals. ये दोनों में आपको मिलते हैं. And here mostly they are found in animals की बात अगर करते हैं. तो today now we are going to discuss about this cellular respiration. तो first of all, what is the definition of cellular respiration? अब इसका definition क्या होगा? Definition of cellular respiration. It is intracellular, catabolic process, by which क्या होगा? breakdown of organic materials into stepwise manners releases energy in the form of
ATP in the form of ATP, that is known as cellular respiration. So what is the main purpose of the cellular respiration is what? Main purpose क्या हुआ? Production of energy. Production of energy. Production of energy. This is the main purpose of cellular respiration is what? Production of energy. Because क्यों ऐसा होता है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फॉर ऑल लिविंग थिंग? बिकॉज ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड इनसाइड द लिविंग थिंग्स with the help of energy. If the energy or ATP is not available inside the cell, what happens? All the bioreactions जो होंगे totally seized हो जाएंगे, stopped हो जाएंगे and ultimately death of the person. तो आपने देखा कि सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मेन रोल किसका हुआ? ऑक्सीडेशन आप कौन कर रहा है? ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन. इसी को हम ब्रेकडाउन को हम ऑक्सीडेशन का भी बोल सकते हैं. ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और ऑक्सीजन कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग. तो ऑक्सीजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू स्टेप वाइज मैनर. ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में एनर्जी जनरेट हो जाएगी. इनटू स्टेप वाइज मैनर रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी यूज इन द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द सेल. नेक्स्ट, all living organisms needed energy for different activities in daily life. में कहाँ पर एनर्जी की जरूरत होगी? नीडेड एनर्जी. द फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को शो करता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ absorption, transporter, reproduction, locomotion or movement and breathing process also. कुछ important मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया. some physiological process takes place inside the living thing and all the physiological process proceed inside the living things presence of energy के प्रेजेंस में होता है. तो एनर्जी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है. अब ये बात आती है कि एटीपी की बात आ रही है कि एटीपी जरूर है. तो व्हाट इज द एटीपी? एटीपी क्या है? इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस कर लें. अच्छा, अब ये एटीपी इज व्हाट? एटीपी फुल फॉर्म क्या होगा? What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphates is a type of chemical energy. ये क्या है? It is a type of chemical energy. ये chemical energy हुआ. And second important point, it is also known as currency of the energy. इसको केमिकल एनर्जी करें बिकॉज दिस एनर्जी यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड सेकेंड इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी. व्हाई इट इज कॉल्ड एंड करेंसी ऑफ द एनर्जी? क्यों इसको हम करेंसी ऑफ द एनर्जी बोल रहे हैं? व्हेन सेल नीड energy for biochemical reactions. अगर उस रिएक्शंस के लिए उसको नीड होती है, एट दिस टाइम में क्या होता है
क्या करेगा? ATP needed energy, ATP are breakdown converted into ADP plus inorganic phosphate plus releases 7.3 किलोज कैलोरीज एनर्जी। और इसको कन्वर्ट अगर हम कर दें कैलोरीज में, 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम सिंगल ATP and this energy used in different activity or biochemical reaction, used in biochemical reaction used in biochemical reactions में यूज हो रहा है। तो आपने देखा कि ATP कहाँ से निकला? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम ले लें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हियर इज द C6H12O6 आर ऑक्सीडाइज्ड with the help of oxygen molecules 6O2, then oxidize 6CO2 plus 6H2O plus ATP। तो ये उसका जब ब्रेकडाउन हुआ, जब ऑक्सीडेशन हुआ रिस्पिरेशन में, तो क्या हुआ? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। यही सेलुलर रिस्पिरेशन हमारा है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन क्या हुआ? इनसाइड द सेल हियर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, glucose, and these glucose molecules are converted into the simpler form like carbon dioxide and water molecules as well as releases energy in the form of ATP। तो ATP के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब ये एनर्जी हमारे सेल बॉडी के अंदर स्टोर होगी। व्हेनेवर सेल नीडेड एनर्जी और नीडेड कर दो तो बेस्ट होगा, नीडेड एनर्जी फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन एट दिस टाइम ATP आर ब्रेकडाउन, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। देन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज और कैलोरीज एंड दिस एनर्जी यूज बाय द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, साइट फॉर ATP सिंथेसिस। साइट फॉर ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस, अब ये बात आता है कि वह कौन सा साइट है इनसाइड द सेल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो साइंटिस्टों को खोजते खोजते क्या मिला कि एक सेल ऑर्गेनेल्स मिला, उसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इज ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स होता है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म्स। ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का पावर हाउस है। जैसे हम लोगों को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी होती है वह हमको पावर हाउस से मिलती है, इसलिए सेल के अंदर जो एनर्जी है वह कहाँ से जनरेट होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। देयरफॉर दिस सेल ऑर्गेनेल्स इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब वो बात, अब उसके अंदर वो कहाँ से ATP जनरेट होती है? हियर द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन हियर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। इनर मेम्ब्रेन्स आर फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ऐसे बनते चले जाते हैं। और ऑन द इनर सरफेस वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट्स। यहाँ पर F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट्स and the F1 particles play a very important roles. So here is the structure of mitochondria. The very simple diagrams mentioned in here. A circular DNA, they are present in here. Here the 70 ribosomes present in here. Here is the outer membranes, outer membrane, inner membrane, inner membrane, mitochondrial matrix, here is the F1 particles, F1
particles. F1 particles. Here is the cristae, the finger-like projection that is known as mitochondrial cristae. Here is the structure of mitochondria. Mitochondria. There is very simple diagrams mentioned in here. आपको समझने के लिए बनाया जा रहा है. The double here is the circular DNA. Circular DNA. इसलिए सेमी ऑटोनॉमस इसको सेल ऑर्गेनेल्स का भी नाम देते हैं. ऑलरेडी हमने डिस्कस्ड कर चुके हैं. Here is the 70S ribosomes. 70S ribosomes. Here is the simple structure of the mitochondria. So mitochondria is what? Mitochondria is the double membranous structure. Outer membranes are very smooth, but the inner membranes are roughness in nature. In the some region they are invaginated inside to form a finger-like projection, and this finger-like projection is known as cristae. On the inner membranes, very large number of F1 particles are attached there. वहाँ attached होती है. And here is the detailed structure of the F1 particles. The F1 particles they are divided into 3 parts. इसके 3 parts में divide होंगे. The upper part of the F1 particle that is known as head. Middle part is known as stalk. And the base वाला जो part होगा that is known as base. तो base, stalk and head. In the head region, here is the simple structure of the F1 particle. Here the F1 particles are oxysomes. F1 particles are oxysomes. दूसरा भी इसका नाम oxysomes के नाम से भी जानते हैं. ये F1 particles are oxysomes. तो in the head region, अगर head region की बात हम देखा जाए, the important enzymes present in here, and this enzyme is known as ATP synthetase enzyme. The structure of F1 particles are oxysomes. The F1 particles are oxysomes having 3 important parts: base, stalks and head. In the head region, a special enzymes present in here, ATP synthetase enzyme. The name of enzyme क्या है? ATP synthetase enzyme. The ATP synthetase enzymes play a very important role for production of ATP. Here ATP are produced from this enzyme. So this enzyme play a very important role for the production of energy in the form of ATP. तो इससे क्लियर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F1 particles होते हैं play a very important role for the production of energy, especially in the head region of F1 particle are oxysomes. Next is structure, chemical structure of ATP. Chemical structure. Chemical structure of ATP. Here the ATP is made up of 3 chemical components: adenine plus ribose sugar plus 3 phosphates. 3 phosphate groups attach with them to form एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसी को हम क्या नाम देते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Adenosine triphosphates. Here is the simple structure of the adenosine triphosphate. Here is the nitrogenous basis, adenines, here is the ribose sugars, and here is the phosphate groups attached here. Here is the adenine, ribose sugar. Here is the 3 phosphates. Here is the high energy bonds, the last bonds in between the phosphate groups are high energy bonds, and here the 2 bonds are low energy bond. So whenever, here is the simple structure of the adenosine triphosphates. तो जब भी सेल को नीड होती है
फॉर डिफरेंट एक्टिविटी इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी। यही का बॉन्ड ये ब्रेक होता है, लास्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, देन रिलीजेज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ से कितनी एनर्जी निकली? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम दिस बॉन्ड्स। यहाँ से वो बॉन्ड से रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में एवरीडे बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये एटीपी हम डिफरेंट एक्टिविटी में यूज करते चले जाते हैं। जब भी सेल को नीड होती है एटीपी आर ब्रेक डाउन, वह ब्रेक होती है इन द फॉर्म ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये ब्रेक होगा तो इस फॉर्म में वो चला जाता है एंड देन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज और कैलोरीज के रूप में वो जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है, डू प्लांट ब्रीथ? डू प्लांट ब्रीथ? यस करता है, ब्रीदिंग करता है, बट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नॉट वेल डेवलप्ड, वो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि कैसे करता है? सम स्पेशलाइज्ड पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ब्रीदिंग। तो टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द फर्स्ट इज स्टोमेटा, they are present on the surface of the leaf, ये लीफ के सरफेस होती है और ये इट इज इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आप उसके लीफ पर देखोगे, स्टोमेटा इज व्हाट? स्टोमेटा इज द स्लिट लाइक ओपनिंग, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। द सेकेंड इम्पॉर्टेंस parts of the plant play breathing process, lenticell only found in older tree, not younger, older trees। तो यहाँ पर क्या होता है? बार्कलेस एरिया होती है इन द सम रीजन्स ऑफ स्टेम। वह क्या होगा? बार्कलेस एरिया आर प्रेजेंट। वहाँ पर कैसी एरिया होगी? बार्कलेस एरिया होगी। तो बार्कलेस एरिया इज नोन एज लेंटिसेल एंड द लेंटिसेल इज ए टाइप ऑफ ओपनिंग। ये भी कैसी है? ओपनिंग है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्या प्लांट ब्रीदिंग करता है? यस करता है, बट नॉट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हम लोगों को जैसा उसके पास नहीं होता है। बट द सम इंपॉर्टेंट रीजन में आप देख सकते हो, स्टोमेटा, लेंटिसेल, द स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ पर होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस में हेल्प करेगी। द लेंटिसेल दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, only found in the older tree, not found in the younger tree. In the some region, जो bark area होती है रिमूव हो जाती है to form a small opening that is known as lenticell, and lenticell play a very important role for exchange of gases takes place, as well as root is also exchange of gases takes place through water by diffusion process. Next, regions for absence of a respiratory organs in plants। अभी एक क्वेश्चन लास्ट में ये राइज होता है कि क्यों प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, व्हाट इज द पैरामीटर, क्यों ऐसा होता है? तो उसमें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन, each plant parts take care itself for exchange of gases। This is the first important points of the plants, means every part of the plants take care itself for exchange of gases।
जैसे हम लोगों को क्या है, यही पार्ट जो होता है वो ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी और बॉडी पार्ट्स में नहीं है। तो इसलिए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसलिए हमारे पास वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम्स चाहिए। लेकिन इसका रूट, स्टेम, लीव्स, एवरी पार्ट्स रिस्पायर्स करता है और इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्लांट do not present great demands for exchange of gases, root, stem and leaves respire slow rate than animals। मतलब इसको ग्रेट डिमांड नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, क्योंकि इनका जो रेट है वो भी क्या है, स्लो है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑल द प्लांट्स आर मोस्टली, सारे जो प्लांट्स होते हैं दे आर स्टेशनरी इन नेचर, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो उसको ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ज़्यादा ब्रेकडाउन करने की, ज़्यादा ऑक्सीजन की भी डिमांड बॉडी के अंदर नहीं होती, उनके सेल के अंदर नहीं होती इन कंपेरिजन टू द एनिमल्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द प्लांट्स, प्लांट cells are closely packed, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं। Thus the distance of gases must diffuse do not large डिफ्यूज कर दो तो अच्छा रहेगा। मीन्स प्लांट सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब ऑल द प्लांट सेल दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर्स, देयरफॉर उनमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा दूर तक उनको जाने ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेन 3 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द प्लांट, द फर्स्ट, द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, इसलिए उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज द रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पायर्स आर वेरी स्लो रेट दैन द एनिमल। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द प्लांट सेल आर क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर दस द डिस्टेंस ऑफ गैसेस मस्ट डिफ्यूज डू नॉट लार्ज, बहुत ज़्यादा उसको डिफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।